In my previous video, I had calculated the capacitance of a capacitor. In today's video, will be talking about energy stored in a capacitor. This energy is stored in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द इट इज स्टोर्ड, यू कैन से इन द सेम वे, जैसे दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, उसी तरह से यू कैन अंडरस्टैंड दैट देर आर टू प्लेट्स एंड एनर्जी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है. एंड सिंस इट इज़ अ कैपेसिटर, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. सो हाउ कम दिस एनर्जी कम्स, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ लाइंस लिख दी हैं. सो एनर्जी जो है वो उसकी वजह है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर. जब हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमें एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाना हो रहा है. तो इस वजह से जब चार्ज मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन हुआ. जो वर्क डन हुआ इन मूवमेंट ऑफ चार्ज, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है. अब देखिए, इसको बेहतर तरह से समझते हैं. लेट एट एनी इंस्टेंट suppose there is a charge q dash plus charge plus q dash over this side. This is plus q dash. So if this is plus q dash, this side will become minus q dash. Fine. And there will be an electric field between the plates which will be directed in this direction, positive to negative. At any instant, I will write now, let at any instant there is q dash plus q dash and minus q dash. There are charges on the plates of capacitor. Fine. So there will be potential difference between the plates. That potential difference can be written as V dash equal to, I think, q dash by c, small q, right? And suppose, now let us consider that a very small charge dq is moved, है ना, additionally from negatively charged plate, negative charged, ये एक काम करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ, ये बड़ा लंबा लिखने से बेहतर है. प्लेट का नाम लिख देता हूँ. लेट अस से दिस प्लेट इज A एंड दिस प्लेट इज B. प्लेट A, प्लेट B. From plate B to plate A, right? The work done then work done, then a small amount of work done dW equal to V dash, and small charge means dq.
right? Fine. So this is the small amount of work done. dW equal to V dash dq in transferring only dq charge. But what about the capacitor? In capacitor, plate A gets charge q, then we should integrate in for getting total work done. Then total work done will be the integration of w dw for transferring total charge. Let us say total charge transferred is capital Q. All right, so equal to V dash dq. We can place value of V dash. V dash की वैल्यू क्या है? Q dash by C dq, करेक्ट. एंड एक और बात, इसमें dq डैश लिखता हूँ यहाँ पर मैं, dq डैश चार्ज, बिकॉज मैंने नोटेशन में पहले से q डैश यूज किया हुआ है इसलिए. सो वी आई राइट लाइक दिस, q डैश बाय c dq डैश एंड 0 to q. On integration, this becomes q dash square by 2c 0 to q, and when I place the limits, it becomes capital Q square by 2c. This is the work done, total work done, and this is also the potential energy or the energy stored in capacitor. ये भी और लिख सकते हैं हम. This is the energy of capacitor when it is charged. In the charging process, this much energy is stored in the capacitor. Now we can write other forms of the same formula. Since we know Q equal to CV, so U equal to q square by 2c can be converted to q equal to cv, so c square v square by 2c. So u can be written as half cv square also. This is capital U, remember this. Or this can also be written as u equal to half, if we write it like this, that q equal to cv, then c square v square by 2c can also be changed u equals to half cv means q, राइट. तो इस लाइन को थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ मैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाफ q स्क्वायर बाय, सॉरी नो, इस लाइन को ऐसे लिखा जाए कि सी वी इंटू वी, दिस लाइन है ना, तो Q इक्वल टू सी वी इंटू वी, तो हाफ क्यू भी लिख सकते हैं हम इसे, करेक्ट. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑन द सेम फॉर्मूला. सो दीज ऑल आर सेम लाइन्स, यू कैन से. सभी रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को. फाइन. अब इसी में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. एक नया जो फॉर्मूला है वो और ड्राइव कर लेते हैं. जब इतना किया है तो एनर्जी डेंसिटी, न्यू टर्म नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. I hope all of you remember this formula. Now this formula, in this formula what can we do, इस फॉर्मूला को हम ऊपर रख लें हाफ सी वी स्क्वायर में,
राइट। तो U इक्वल टू हाफ C मीन्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, राइट, एंड V स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। जस्ट नाउ वी हैव ड्राइव्ड। ये जो ऊपर देखिए, ये फॉर्मूला अभी भी ड्राइव किया है। देखिए ये फॉर्मूला अब मैंने दोबारा यूज कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ अब? नाउ लेट अस डू वन थिंग, ओके, लिटिल more modification. V equal to ED by using the formula dV equal to EDR. when I have derived the formula of capacitance, जब मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था फर्स्ट वाला ये, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करते टाइम मैंने V equal to ED यूज किया था वहाँ। आई होप यू रिमेंबर। So from there V equal to ED we can use again, or this formula can be used everywhere actually. Fine. So now A and D, if we multiply A and D and we bring it down this side, A into D क्या होगा? आप जरा सोचिए जब तक। हाफ एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट E बाय D। और एक और छोटी सी गलती हो गई मुझसे, V स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर हेयर। ये जो V स्क्वायर है तो स्क्वायर हेयर, सो इट इज़ E स्क्वायर इंटू D, बिकॉज एक D मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दी। ये D और D कैंसिल हो जाएगा। अब वी कैन कैंसिल दिस D एंड दिस D कैन बी कैंसिल्ड। तो U अपॉन AD, अच्छा AD मैं पूछ रहा था आपसे, तो AD जो हिस्सा है सिर्फ AD, ये AD क्या है? वॉल्यूम, बिकॉज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, D डिस्टेंस थी बीच की, तो ये पूरी क्वांटिटी का नाम क्या हो जाएगा? अब ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका नाम हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अभी मैंने जो शुरुआत में हेडिंग लिखी थी वो थी क्या? एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू नाउ इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। और आप एक देखिए, एक नोट करने लायक बात इसमें कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है इसमें कैपेसिटर तो के लिए यूज किया है हमने, फॉर्मूला ड्राइव किया है, लेकिन देखिए कहीं भी कैपेसिटेंस नहीं है, करेक्ट। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बस है इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा probably about combination of capacitor and redistribution of charges के बारे में।